बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप वेक्टर्स और फोर्सेस into the components forces is called resolution of forces. A force is formed from two mutually perpendicular components. Then such components are called perpendicular components. Splitting up of a force into two mutual perpendicular components is called the resolution of the force. In ninth class, when we divide one larger force into two smaller forces which are perpendicular to each other, then this process is called resolution of forces. These two small perpendicular forces are called perpendicular components. Hence, splitting a force into two mutually perpendicular forces is called a resolution of forces. रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है आज का टॉपिक नाइन्थ क्लास। एक फोर्स को दो परपेंडिकुलर फोर्सेस में तकसीम करने के प्रोसेस को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। और एक फोर्स को तकसीम करने के बाद जो नए कंपोनेंट्स हासिल होते हैं उनको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट वी कंसीडर देयर इज अ फोर्स F which making an angle of theta with the x-axis. When we draw this like this is the force F, which is represented by line AB, which making angle theta with the horizontal line. Then AB is hypotenuse and BC is perpendicular and AC is base. Like this. In this diagram, force F is represented by OA and horizontal component is represented, Fx is represented by OB and vertical component is represented by AB. Then OA is equal to OB plus AB. OA इनके hypotenuse is equal to OB base plus BA perpendicular. When we put the values in them, then it will become like this. F is equal to Fx plus Fy. F is force, Fx is horizontal component and Fy is vertical component. For the values and Fx and Fy, first for the value of Fx we have to apply cos theta. Cos theta is always base over hypotenuse. Base is Fx, hypotenuse is F. With the cross multiplication, it will come Fx is equal to F cos theta. Similarly, sin theta is equal to, sin theta is always is equal to perpendicular divided by hypotenuse. Perpendicular Fy, hypotenuse F. With the cross multiplication, Fy is equal to F sin theta. These are two components. Fx is equal to F cos theta and Fy is equal to F sin theta. So in this way we can determine the components. नाइन्थ क्लास हम लेट करते हैं कि हमारे पास एक फोर्स है F जो कि x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है। इस फोर्स F को इस डायग्राम में ज़ाहिर किया गया है लाइन OA से और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को OB से और वर्टिकल कंपोनेंट को AB से ज़ाहिर किया गया है। इस सूरत में ये जो OA है ये रिजल्टेंट है, ये OB और BA को प्लस करने से आता है और अगर इसमें वैल्यूज़ पुट कर दिए हैं तो F इज़ इक्वल टू Fx प्लस Fy आता है।
एफ एक्स और एफ वाई की अलग वैल्यूज़ पुट फाइंड करने के लिए एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए कॉस थीटा अप्लाई करेंगे, जो कि इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि एफ एक्स ओवर एफ। और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कर दी जाएगी तो फिर फार्मूला आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फार्मूला है। और अगर वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना है तो उसके लिए साइन थीटा अप्लाई करेंगे। साइन थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस की जगह एफ वाई और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की जगह पे एफ वाई और हाइपोटेन्यूज की जगह पे एफ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। इस तरह दोनों कंपोनेंट्स के फार्मूले ड्राइव हो गए। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा होता है और एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा होता है। इसी का दूसरा टॉपिक इसी क्वेश्चन का है, डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। 9th class, it means that we have the perpendicular components fx and fy, and we have to find out the force F. We have to find out two things: magnitude of force F and secondly the direction of force F. Same diagram, OA is represented by F, OB is represented by Fx, and AB is represented by Fy. Same diagram and same formula. OR is equal to OP plus PR, यानी कि hypotenuse is equal to base plus perpendicular, in the way F is equal to Fx plus Fy. For the determination of magnitude, we can apply the Pythagoras theorem. In the light of Pythagoras theorem, OR square is equal to OP square plus PR square. By putting value, OR square will come F square, OP square is Fx square, and PR square will come Fy square. For this square, we take the both sides. We take the square root of both sides. Then it will be answer F is equal to Fx square plus Fy square whole square root. It is the magnitude. And for direction, we apply tan theta. Tan theta is equal to perpendicular over hypotenuse, perpendicular over base. Perpendicular is Fx, Fy, base is Fx, and tan theta will come to the other side of the equality. Then tan will come tan inverse. Then formula is theta is equal to tan inverse Fy over Fx. It is the direction. 9th class, क्वेश्चन है डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमें दिए गए हैं, एफ एक्स और एफ वाई हमें दिए गए हैं, हमने एफ फाइंड करना है। हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, फोर्स एफ की मैग्नीट्यूड और फोर्स एफ की डायरेक्शन। इसके लिए हम ये एक डायग्राम सपोज करते हैं। ये ओरिजिन ओ है और ये पॉइंट आर है, ये पी है। इसमें ओ आर जो है ना वो एफ़ को ज़ाहिर कर रहा है, ओ पी जो है वो एफ एक्स को, और पी आर जो है ना वो एफ वाई को ज़ाहिर कर रहा है। इस सूरत में हम फार्मूला बनाएंगे ओ आर इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी आर, यानी कि वितर इज इक्वल बराबर होता है कायदा प्लस अमूद। ओ आर की जगह पे एफ आ जाएगा, ओ पी की जगह पे एफ एक्स आ जाएगा, पी आर की जगह पे एफ वाई आएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा। अब एफ़ की हमने जब मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है ना, तो उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, मसला फिसागोरस लगाना पड़ेगा। वो होता है कि ओ आर स्क्वायर, यानी कि वितर का स्क्वायर बराबर है कायदे का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ओ आर की जगह पे एफ़, ओ पी की जगह पे एफ एक्स, पी आर की जगह पे एफ वाई, इनके स्क्वायर आ जाएंगे। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये आंसर आएगा। ये फोर्स की मैग्नीट्यूड है। फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए टैन थीटा अप्लाई करेंगे। टैन थीटा इज इक्वल टू होता है, टैन जब भी फाइंड करना हो तो वो बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय
बेस। तो परपेंडिकुलर जो है वो एफ वाई है, बेस एफ एक्स है। टैन थीटा इधर है, जब उसको इक्वल के इधर लेके आएंगे तो वो इन्वर्स हो जाएगा। तो थीटा का फार्मूला आया, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो ये जो है ना, ये डायरेक्शन को ज़ाहिर कर रहा है। तो ये फोर्स की डायरेक्शन है। क्या बोलिए, आपकी बात बहुत वो रही है। हाँ जी बच्चों, आज हम आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टॉपिक 4.4 विच इज़ अबाउट रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर फोर्सेस। देखिए हमारे पास फोर्स क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और रेजोल्यूशन जो कि हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था एडिशन ऑफ फोर्सेस, जिसमें हमने फोर्सेस को ऐड अप किया था। अब ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है। रेजोल्यूट का मतलब होता है स्प्लिट अप करना, तोड़ना। किसको? वेक्टर को। किस में तोड़ना? उसके कंपोनेंट्स में। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर फोर्सेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप वेक्टर्स या फोर्सेस इनटू देयर कंपोनेंट फोर्सेस। यानी कि किसी भी वेक्टर को जब हम उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो उसे कहते होते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो चूँकि अभी हम फोर्स पढ़ रहे हैं, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर फोर्स क्या होगी कि जब हम फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। इसकी जो छोटी सी डेरिवेशन है उसको देखते हैं। ये डेरिवेशन है। तो इससे पहले ये आपने क्या करना है कि आपने एक एक्स एक्सिस पे लाइन खींच लेनी है और एक वाई एक्सिस। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर एक वेक्टर को प्लेस कर देना है। ये फोर्स का वेक्टर है। चूँकि हम फोर्स की स्प्लिटिंग पढ़ रहे हैं, इसलिए रेजोल्यूशन फोर्स की पढ़ रहे हैं, तो हमने फोर्स को ले लिया एक वेक्टर, जिसको मैंने रेड लाइन से शो किया है। अब बच्चों देखिए, हमने इसको स्प्लिट अप करना है इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स का मतलब है ये यहाँ पे एक वेक्टर आ रहा है, ड्रा कर रहे हैं, तो इसके कंपोनेंट्स एक ये वाई एक्सिस पे बनेगा, इस तरह आपने डॉटेड लाइन से शो कर देना। इसी तरह आपने ये डॉटेड लाइंस यहाँ पे भी लगा लेनी है एक्स एक्सिस के अराउंड। ये हमारे पास ये एक एक्स एक्सिस के अराउंड हो जाता है कंपोनेंट, और एक वाई एक्सिस के अराउंड हो जाता है। तो जो हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग होगा उसको हम एफ एक्स कह देते हैं, और जो वाई एक्सिस के अलोंग होगा उसको हम एफ वाई का नाम दे देते हैं। इसी तरह आपने इनको पॉइंट्स दे देने हैं ओ ए बी। अच्छा बच्चों, चूँकि हम फोर्स को स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे पास फोर्स के लिए हम जो है वो उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म उसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास वेक्टर फोर्स का क्या है, ओ से लेकर ए तक हमारे पास एक वेक्टर है, ओ से ए तक, उसको हमने लिख लिया ओ ए। आगे हमने इक्वलिटी का साइन डाला, तो ये किसके इक्वल है? अगर हम ए बी को यानी इस पोर्शन को और इस पोर्शन को ऐड करें ओ बी को, तो हमारे पास वो फोर्स के इक्वल है। ओ ए किसके इक्वल है? ओ बी प्लस ए बी, यानी ओ बी प्लस ए बी। अब ओ से ए तक हमारे पास क्या है? ओ से ए तक फोर्स है, तो इसको हमने लिख लिया एफ इज इक्वल टू, एफ के ऊपर आपने एरो लगाना है क्योंकि ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इज इक्वल टू। आगे है ओ बी, ये ओ बी किसके इक्वल है? ओ से बी तक हमारे पास एफ एक्स के इक्वल है, तो आपने एफ एक्स लिख लिया। इसी तरह ए बी जो है हमारे पास ये किसके इक्वल है? एफ वाई के, तो आपने ए बी को एफ वाई लिखा। इसके ऊपर हमने एरो क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज है कंपोनेंट्स की फॉर्म में, ये वेक्टर्स नहीं है बल्कि क्या है? वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड है। तो इस तरह हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, ये फोर्स किसके इक्वल है? हम इसके कंपोनेंट्स एफ एक्स प्लस एफ वाई की। ठीक है, अब ये जो एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट्स, इनको हमने फाइंड आउट करना है कि ये कैसे, हमने इनकी वैल्यूज़ क्या होती है हमारे पास। तो बच्चों एफ एक्स और एफ वाई को फाइंड आउट करना, तो पहले ये वाला पोर्शन करते हैं। एफ एक्स कैसे फाइंड करना है? हमारे पास कॉस थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों? बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो हमारे पास बेस यहाँ पे क्या है गिवन में? बेस हमारे पास ओ बी है और हाइपोटेनियस क्या है? ओ ए। तो ओ बी को ओ ए पे डिवाइड कर देंगे। ओ बी हमारे पास बेस है, ओ ए हाइपोटेनियस है। अच्छा ओ बी हमारे पास किसके इक्वल है? ओ बी हमने पढ़ा हमारे पास एफ एक्स के इक्वल है। ये ओ बी किसके इक्वल है? एफ एक्स के इक्वल, एफ एक्स। और ओ ए किसके इक्वल है? एफ के इक्वल है। तो ऊपर क्या आ जाएगा? एफ एक्स, नीचे आ जाएगा एफ। अब चूँकि हमें फाइंड आउट करने हैं एफ एक्स और एफ वाई, तो यहाँ पे एफ एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी? ये एफ डिवाइड हो रहा है, तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये एफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? एफ कॉस थीटा। तो हमारे पास एफ एक्स कंपोनेंट की वैल्यू क्या आ गई? एफ कॉस थीटा। इसी तरह साइन थीटा, जब हम इसका फॉर्मूला ब्रेक करेंगे, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे क्या है? ए बी है, ये परपेंडिकुलर है ए बी।
और हाइपोटेनियस ओ ए, यानी ए बी ओवर क्या आ गया ओ ए। अब देखिए हमारे पास ए बी किसके इक्वल है, ए बी हमारे पास किसके इक्वल है, ए से बी तक हमारे पास एफ वाई की इक्वल है और हाइपोटेनियस एफ की इक्वल है। हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा एफ वाई, यानी ए बी एफ वाई की इक्वल है, ओवर ओ ए एफ आ जाएगा। तो सेम एज इट इज जिस तरह हमने इस साइड वाले से राइट साइड की तरफ जब हमने किया था तो हमने एफ एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया था, तो इसमें हम एफ वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास एफ वाई की क्या वैल्यू आ जाएगी, एफ जो है नीचे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एफ साइन थीटा हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एफ वाई कंपोनेंट आ गया। तो ये था हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है बच्चों? जी सर। 9th क्लास आज के लेसन में शॉर्ट क्वेश्चन पहला है डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की तारीफ लिखें। ये पेज नंबर 88 पे इसका आंसर है, उर्दू और इंग्लिश दोनों की बुक्स में। तो ये पिंक कलर का बॉक्स, सेपरेटिंग अप ऑफ अ फोर्स इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स मालूम करने का फार्मूला क्या है। तो पेज नंबर 89 उर्दू मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी इसका आंसर है। ये फोर्स का फार्मूला है एफ इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है और दोनों बुक्स पे यही आंसर इसका मिल जाएगा।